Hi, my name is Hira Shahin, and today I am going to continue with the topic we were discussing, that is exercise from that book, Mastering C by K.R. Venugopal and S.R. Prasad, in which we were discussing the exercise based on variables and expressions. In the last video, we had seen some questions. Now we'll go and continue after that. So this is question number 2.14, and it is asking what is the output of the following program. So see here, the question says that this is given in unsigned int I equal to -1. I is the name of variable. Okay. So let me. So this is the name of variable. Okay. So it can be one single letter also, it can be two letter also. So the value taken as -1. So in the first printf statement, it is printing integer value %d I. So it will print what it will print, it will just print -1. And in the next statement, it is saying I into -1. तो सिंपल -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है. So it will print 1. The first statement will print -1 and another statement will print 1. Next question, what is the output of the following program? So here it is, the variable name is again I. Its value is taken as 10. It has been initialized with 10. And after that, it is pushing it. It is left shift. Left shift 1 bit. So first this is binary shift operator. So first this will be converted into binary form like this. So we have taken 4 bit. You can take it in 8 bit also like this. And when it is shifted 1 bit, this bit will come at this place. 0 will come here, this 1 will come here, 0 will come here, and these zeros are remained same as it was, and here it will be filled with 0. So its value now becomes, you can calculate, it is 20. How? This is 2 to the power of 4, and this will be multiplied with 2 to the power of 2. So 1 into 2 to the power of 4 plus 1 into 2 to the power of 2. This is 16 plus 4, that is 20. So it will print the value of I. After left shift, it will become 2. Just remember that when we shift 1 bit, it will be multiplied by 2. If it will be 2 bit, then it will again be multiplied by 2 bit, means 2 to the power of number of bit. Okay, here number of bit is 1, so it will be 2 to the power of 1. The result will be 10 into 2 to the power of 1. So in this case, the answer will be 20. Now the next question, what is the output of the following code? See here, it is written printf in this %d, and here it is for what? Printf computer. Computer is a string, it is printing. So remember, always remember, when we print inside printf statement, when we print some string, it returns the number of characters in that string which it has printed. This will print this. Okay, first the output will be computer on your screen, and the next thing will be the number of characters it has printed. So कितने characters हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या printf क्या रिटर्न करेगा? ये तो प्रिंट करेगा, साथ में ही रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि 8 है. So because of this, it will print 8. Okay, now next question.
here it is a variable value, it has taken as 1234.5678, and also here it is written integer type. And after that, in the printf statement, we are printing the value of var, and the format specifier is %d. It means the integral part or integral value. So it will print just 1, 2, 3, 4. This will be the answer. Next question. Here in this, var1 is equal to 15, var2 is equal to 10, and another variables p and q. And in this statement, this one, p is equal to var1 greater than 14. Means here we are using the relational operator. तो relational operator क्या करेगा, इसको चेक करके रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स में. तो var1 की वैल्यू क्या है, 15 है, दैट इज ग्रेटर देन 14. सो इट विल रिटर्न ट्रू. ट्रू मीन्स 1. तो p में क्या स्टोर हो जाएगा, 1. उसी तरह से अब q में देखिए, q में क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ साथ यहाँ पे बीच में लॉजिकल एंड भी लगा है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, ये var1 ग्रेटर देन 8 एंड var2 डबल इक्वल टू 8, यानी कि दो कंडीशंस है. तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये क्यू में ट्रू यानी 1 स्टोर होगा, अदरवाइज फॉल्स स्टोर होगा. तो पहले हम लोग पहला वाला कंडीशन चेक करते हैं. var1 ग्रेटर देन 8 है, var1 की वैल्यू 15 थी, तो ये ट्रू हो गया. पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया. दूसरा कंडीशन क्या कहता है, var2 डबल इक्वल टू 8. तो क्या ये ट्रू है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो ट्रू एंड फॉल्स, लॉजिकल एंड है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा. तो Q में क्या स्टोर हो जाएगा, 0. Q में स्टोर हो जाएगा 0. अब हम P और Q की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 1 P के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड Q के कॉरेस्पॉन्डिंग 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the minimum value that can be represented with 8 bits signed magnitude notation. Signed magnitude notation, हाँ, इसको ध्यान देंगे कि ये क्या कहता है, साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन. अगर आपका 8 बिट होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम. तो हमने जैसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है. अगर ये अनसाइंड है तो ये मैक्सिमम 0 to 2 to the power of 8 minus 1 होता है ना. बट जब बात हम करते हैं साइंड की, तो 1 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, दैट बिकम्स रिजर्व. इसको हम रिजर्व कर देते हैं साइंड बिट के लिए. तो ओनली 7 स्पेसेस आर लेफ्ट, 7 बिट्स. तो हम उसी में स्टोर करते हैं वैल्यूज को. तो यहाँ जो वैल्यूज हो जाती हैं वो 2 to the power of 7 बन सकती है. लेकिन जब ये माइनस में होती है तो ये क्या हो जाएगी, 2 to the power of 7 क्या हो जाएगी, -128. और पॉजिटिव में ये कहाँ तक जा सकती है, 127 तक. तो जो रेंज ये स्टोर कर सकता है वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा -128 to 0 to 127. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसमें, -128. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -128. माइनस ना लिख करके हम कह सकते हैं कि साइंड है, तो ये आपका 128 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. यहाँ पे ये क्या कर रहा है, var1 इक्वल टू 1 असाइन कर रहे हैं, var2 इक्वल टू 12, var3 इज इक्वल टू 12. और उसके बाद ये क्या कह रहा है, var1 इक्वल टू var2 एंड देन डबल इक्वल टू var3. मतलब var2 और var3 को इक्वालिटी चेक कर रहा है, और यहाँ पे उसमें असाइन कर रहे हैं उसके ये रिजल्ट var1 में, यानी या दो ऑपरेटर, एक यहाँ पे असाइनमेंट और यहाँ पे इक्वालिटी. तो इन दोनों में इक्वालिटी की प्रायोरिटी हायर है, तो हम पहले इसका काम करेंगे और var2 और var3 को चेक कर लेंगे कि दोनों इक्वल है. इफ दे आर बोथ आर इक्वल, इट विल रिटर्न ट्रू.
तो यहाँ पे ये क्या है 12 है और ये भी 12 है, तो दिस आर इक्वल, सो इट विल रिटर्न 1 एंड 1 विल बी असाइन टू var1। तो var1 में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर ये जब हम var1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 2.21, यहाँ पे ये क्या कहता है कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर। ये पॉइंटर बनाया गया है, यहाँ स्टार जो लगा होता है, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, यानी कि ये पीटीआर जो है पॉइंटर वेरिएबल है। और ये किस तरह के पॉइंटर, किस तरह के वैल्यू का पॉइंटर लेगा, ये कैरेक्टर टाइप की कोई वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर होगा। पॉइंटर वेरिएबल का यही काम होता है कि वो क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए जो नेक्स्ट लाइन में ये क्या कर रहा है प्रिंटफ स्टेटमेंट में, साइज ऑफ स्टार पीटीआर और साइज ऑफ पीटीआर। जब हम किसी स्टेटमेंट के अंदर जब स्टार पीटीआर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, और जब पीटीआर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पॉइंटर का जब एड्रेस जो जिसमें स्टोर होता है जो वेरिएबल पॉइंटर टाइप का, उसका साइज क्या होगा 2 हो जाएगा। और इसका जो ये स्टार पीटीआर है यानी कि जो वैल्यू उस एड्रेस में है, पीटीआर में तो क्या है एड्रेस है, और स्टार लगा देने से क्या होता है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पीटीआर है और कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी, सपोज एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी, और ये पीटीआर क्या कर रहा है, इट इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ सी। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंटर पढ़ चुके होंगे तो ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी भी आप इतना समझ सकते हैं कि अगर हम स्टार पीटीआर लिखते हैं तो स्टार पीटीआर क्या कहता है, पीटीआर में क्या होगा सी का एड्रेस होगा, जैसे सी का एड्रेस सपोज यहाँ पे 2000 है, तो पीटीआर में क्या स्टोर हो जाएगा 2000 इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर हम ये स्टार पीटीआर करते हैं तो स्टार पीटीआर का मतलब है कि 2000 एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है, मान लीजिए इसमें कुछ ए स्टोर्ड है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा कैरेक्टर टाइप का होगा ना, सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर का साइज क्या होता है 1 बाइट होता है, तो इसलिए अगर हम साइज ऑफ स्टार पीटीआर यहाँ पे लिखते हैं तो इट विल रिटर्न 1, एंड साइज ऑफ पीटीआर लिखेंगे तो इट विल रिटर्न 2। जितना भी पॉइंटर है वो 2 बाइट लेता है। वो किसी भी तरह का एड्रेस तो सबका एक ही टाइप का होगा ना मेमोरी का, तो इसलिए इसका हमेशा देखेंगे 2 बाइट शो करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन see here what is the output of the following code. Question number 2.22, int var equal to -3. See here it is unary operator, 2 times unary operator has been used. So simple maths can be applied here, like minus with -3 will become 3, so the output will be 3. Next question is enum. So enum, in the last video also I told you, when we create enumerated data type, we assign integral values, integer values to the this num values ना, इसके corresponding हम क्या करते हैं integer values assign कर देते हैं। तो ये जब इसमें कुछ values हम देते नहीं है तो ये directly 0 1 2 like this इसको values assign होती है। तो यहाँ पे ये सिंपली ये क्या कर रहा है printf स्टेटमेंट में %d ये डॉट डॉट क्या है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, और ये %d संडे के लिए, ये %d मंडे के लिए, और ये %d ट्यूसडे के लिए। तो ये क्या प्रिंट करेगा 0 1 2, अब बीच में क्या है डॉट डॉट। यू कैन डू दिस प्रैक्टिस इन योर लैपटॉप ऑल्सो, whether it is correct or not, आप लोग इस प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज unsigned cell_8 equal to -1
and after that int sold it. Just wait. यहाँ पे अनसाइंड इंट होना चाहिए, ठीक है, ये छूटा हुआ। तो ये क्या हो गया, इंट सोल्ड अंडरस्कोर इट, दो वेरिएबल बनाए, इसको इनिशियलाइज भी किया गया है -1 से और इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रिंट एफ प्लस प्लस सेल अंडरस्कोर इट। तो ये क्या कर रहा है, प्री इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये जो है ये पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये पहले -1 था, इट विल बिकम 0 and it will print that. After that it is saying sold it is equal to minus cell underscore it. क्या कह रहा है, sold it जो वेरिएबल है इसमें माइनस सेल अंडरस्कोर इट कर दो। तो सेल अंडरस्कोर इट की वैल्यू क्या थी, 0 थी उसमें, मगर माइनस लगा देंगे तो क्या रहेगा, तो भी वो 0 ही होगा। तो ये दिस स्टेटमेंट विल आल्सो प्रिंट 0. Okay, next question is this one, void main character array null. यहाँ पे क्या है, इसमें ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर एरे मतलब क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। एरे जब हम बनाते हैं कैरेक्टर एरे, तो ये क्या है, एक तरह से हम स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए बनाते हैं। तो स्ट्रिंग में हमेशा याद रखना है कि जो स्ट्रिंग स्टोर होती है तो उसमें लास्ट कैरेक्टर नल स्टोर किया जाता है, दैट इज शोइंग दैट द स्ट्रिंग हैज बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसने नल लिया, इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका साइज फिर भी 1 होगा, क्योंकि हमेशा जो एरे का साइज होता है वो एक ज्यादा होता है। सपोज मेरे एरे में, मतलब ये जो कैरेक्टर एरे है यहाँ पे, तो हमने लिया है नल, लेकिन अगर मैं इस तरह से कोई स्ट्रिंग स्टोर करती जैसे ABC, तो ये क्या इसमें रहता ABC और नल। स्पेसेस कितने रिक्वायर्ड होते, 4 बाइट। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक स्पेस एक्स्ट्रा इसको दिया जाता है नल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, ताकि ये जो है इसको ये बताए कि दिस इज द फिनिश ऑफ योर स्ट्रिंग। तो इसका साइज क्या हम कहेंगे, 4 बाइट। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आप इफ के अंदर प्रिंटफ यूज किया गया है इसमें, यानी कि ये एज अ कंडीशन यहाँ पे है। अब मैंने बताया था कि जब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो it will print that और also returns the number of characters it has printed. तो चूंकि एरे में यहाँ पे आपकी क्या है, नल है, तो it will not print anything, but it will give the number of characters it has printed. तो कितने कैरेक्टर्स इसने प्रिंट किए हैं, 1, जो कि नल है। अगर यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर्स होते ABC, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं रन करके, देन ऑल्सो इट विल रिटर्न 4, यानी कि एक ज्यादा। तो जब इसमें कुछ भी नहीं था तो इट विल रिटर्न 1। अगर मान लीजिए आपके एरे में क्या होता, कुछ और मैं दे देती हूँ, सपोज ABCDE, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करता, इस केस में इट विल प्रिंट दिस ABCDE बट रिटर्न्स 6, क्योंकि इसमें एक नल कैरेक्टर भी होता है जो कि वो बताता है कि इट इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे एक ज्यादा ये जो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 1। तो 1 जैसे ही रिटर्न करेगा ये इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड ट्रू होगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो this is all in this video. We'll continue in the next video. Thank you. Thanks for watching. If you like my video, just hit the like button
and share my video, subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.